যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি। বিংশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 39 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 20.39 onwards। 39 নম্বর শ্লোক। যোগায়তং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবর্ষায়িতম, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितम् न्यायतं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। অনুবাদ। হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষেকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। युगायुतं निमेषेण चक्षुषा प्रवर्षायितं। No, sorry, only युगायुता निमेषेण। চক্ষু থেকে বর্ষার ধারার মতো অশ্রুধারা ঝরে পড়েছে चक्षुषा प्रवर्षायितं এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে। शून्यायुतं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपका विरह में উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হইল যুগ সম। উদ্যোগে দিবস না যায়, ছড় হইল যুগ সম। ক্ষণ না, ক্ষণ, ক্ষণ এই বেঙ্গলি। বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিশে নয়ন। বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিশে নয়ন। গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন। গোবিন্দে বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন। তুষানলে পড়ে যেন না যায় জীবন। তুষানলে পড়ে যেন না যায় জীবন। কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ। কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরিচ্ছন। পরীক্ষণ। সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ। সখী সব কহে কৃষ্ণ করে উপেক্ষণ। এতেক চিন্তিতে রাধার নির্মল হৃদয়। এতে চিন্তিতে রাধা নির্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব করিল উদয়। স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব করিল উদয়। উদ্বেগে মহাপ্রভু বললেন, উদ্বেগে আমার দিন কাটে না, কেননা এক ক্ষণকে যুগ বলে মনে হয়। ওই युगायुतम निमेषेण। ठीक है। আমার চোখ দিয়ে বর্ষার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে। চক্ষুষা প্রবর্ষায়িতম। গোবিন্দ বিরহে ত্রিভুবন শূন্য হয়ে গেছে। শূন্যায়তং জগৎ সর্বম গোবিন্দ বিরহে নামে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমি জীবন্ত অবস্থায় তুষানলে দগ্ধ হয়েছি। তুষানল কা क्या है हिंदी? बंद अग्नि में। बंद अग्नि में वो क्या होता है? बादल बादल बर्निंग निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई है। नहीं नहीं, क्या पढ़ रहा है? कौन सा चल रहा है? क्या पढ़ रहा है? 41 नीचे वाला माताजी, नीचे वाला। तुषानल क्या है? मैं जीवे की मंद अग्नि में जल रहा हूँ। मंद अग्नि माने क्या? धीमा धीमा आग, धीमा आग, कम धीमा अग्नि में अच्छा, छोटा थोड़ा अग्नि में अग्नि लग जाती है तो वही है। अभी इंग्लिश तो देखना ही पड़ेगा। 42 धीमा अग्नि में जल रहा है। ये इंग्लिश वाले कोई हेल्प नहीं करता है, चुपचाप रहता है, पूछना पड़ता है फिर बोलेंगे। मुझे 42 है, आप बोल रहे थे। The three words 41 become 41. I am agitated, a day never ends.
And for every moment seems like a millennium. Pouring incessant tears in my eyes are like clouds in the rainy Where are season. you? Where are you? We are in 41. Where are you? 41, please read. Worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as if I am burning alive in a slow fire. Slow fire. Okay? Too bad. तुषान आले दग्ध হচ্ছে प्रभु আমার उद्वेग मतलब क्या होता है? उद्वेग मतलब विचलित होना या क्या, समझ में मतलब ये एजिटेशन एजिटेशन उद्वेग एजिटेशन हाँ, विचलित होना, ठीक। रुई जैसे जलती है ना, वो धीरे धीरे जलते जाती है, पूरा आग पकड़ लेता है भीतर भीतर, उस तरह जल रहा है। ভগবানকে বিরহ নেই আমার প্রেম পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ আমার প্রতি উদাসীন হয়েছে এবং আমার সখীরা আমাকে বলছে তুমি তাকে উপেক্ষা করো জাস্ট ইগনোর হিম তুমি তার কষ্ট পা রহে হো জাস্ট ইগনোর হিম ইয়েস ইন্দ্রাণী মাতাজি অনেকক্ষণ ধরে হাত উঠিয়ে রেখেছে এটা কি মর্নিং এক্সারসাইজ ওকে শ্রীমতী রাধারানী যখন এইভাবে চিন্তা করেছিলেন তখন তার নির্মল হৃদয় স্বাভাবিক প্রেমের स्वभाव उदित हलो ओके क्या क्या स्वभाव उदित हुआ अगला श्लोक हर्षोत्कंठा दैन्य प्रभु ये तो महाप्रभु बोल रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि भगवान कृष्ण मेरी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए और मेरी सखियां कहती है अच्छा हो तुम कृष्ण की उपेक्षा करो। यस श्री राधार भावे एवे तो ये तो महाप्रभु बोल रहे हैं ना। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार ठीक है। तो वहाँ पे सखियां कैसे आ गई? वहाँ पे मतलब महाप्रभु भाव में है, भाव में श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार राधा रानी के भाव में ये सब बोल रहे हैं ना विरह में लव इन सेपरेशन। उसीलिए देखिए कविराज गोस्वामी अगला श्लोक में क्या बोल रहे हैं श्रीमद 43 में देखिए श्रीमती राधा रानी যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন তখন তার নির্মল হৃদয় স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব উদিত হলো। उसके बाद क्या हुआ स्वाभाविक प्रेम का स्वभाव उदित हुआ। स्वाभाविक प्रेम का स्वभाव क्या क्या है 44 में दिया हुआ है हर्षोत्कंठा दैन्य ओरि विनय। नेक्स्ट प्लीज। ঈর্ষিয়া উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ় বিনয় এত ভাব এক ঠাই করিল উদয় এত ভাব এক ঠাই করিল উদয় এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইলা এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল সখীগণ আগে পড়ি শ্লোক যে পড়িলা সখীগণ আগে পড়ি অশ্লোকে যেই পড়িল সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা সেইভাবে প্রভু সেই অশ্লোকে উচ্চারিলা শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা অশ্লোকে উচ্চারিতে तद्रूप आपने होइला। सो अभी नया भाव का प्रकट हो रहा है स्वाभाविक भाव ठीक है और कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं उसके बाद महाप्रभु श्लोक उच्चारण किया हर्ष उत्कंठा दैन्य पौर विनय इत्यादि। अभी एक एक का हम इंग्लिश बता रहे हैं प्रभु हर्ष प्रभु जी हर्ष तो नहीं लिखा ईर्ष्या लिखा हुआ है। हर्ष हर्ष ईर्ष्या लिखा है हम तो हर्ष देख रहे हैं हिंदी में ईर्ष्या लिखा हुआ है इंग्लिश में चेक कर लीजिए बांग्ला में हर्ष लिखा हुआ ईर्ष्या लिखा है ईर्ष्या लिखा ईर्ष्या उड़िया में ये जो हमारा जो पीडीएफ फाइल है उसमें ईर्ष्या ये कुछ मिस्टेक हो गया है। प्रभु ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे बंगाली में हर्ष लिखा हुआ है लेकिन हम लोग की बुक में ईर्ष्या ही है। हाँ ये तो रिपोर्ट करना लायक है लेकिन हिंदी में बाद में उत्साह दिया हुआ है। श्लोक में ये गड़बड़ माने श्लोक में अगर मिसप्रिंट है तो बहुत बड़ा मिस्टेक है एक्चुअली। अभी बाद में याद करेंगे अभी फिर मिनिमाइज करेंगे तो फिर चला जाएगा। उत्साह का तो अर्थ पोड़ के लिए उत्साह है पौड़ी के लिए उत्साह। हाँ ईगरनेस उत्साह उत्कंठा माने ईगरनेस या दैन्य माने ह्यूमिलिटी प्रौढ़ी का हिंदी क्या दिया हुआ है सुमना करेंगे माता जी
उत्साह। ओके, ঠিক है। আর বিনয়, বিনয় তো হিউমিলিটি ইত্যাদি ভাব একসঙ্গে উদিত হলো। সে ভাবের আবেশে শ্রীমতী রাধারানীর মন অস্থির হলো এবং তিনি তখন সখীদের কাছে একটি পৌরী শ্লোক বলতে লাগলেন। পৌরী শ্লোকটা হিন্দি क्या दिया हुआ? उन्नत भक्ति का श्लोक। उन्नत भक्ति का श्लोक। ओके, সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোক प्रभु एक जगह पौड़ी मतलब उत्साह बताया गया है और दूसरी जगह पौड़ी मतलब उन्नत भक्ति बोला जा रहा है। अलग और अलग मतलब श्लोक, उन्नत भक्ति होना चाहिए ऐसे तो। अलग अलग श्लोक में अलग अलग इसका यूज किया गया है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अलग अलग उत्कंठा का क्या मीनिंग दिया प्रभु, उत्कंठा का? ओके, एक सेकंड, डिड यू गेट इट क्लियर सुमना गौरंगी माता जी? एक वर्ड को अलग अलग श्लोक में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर ही सकते हैं। उत्कंठा माने ईगरनेस ना, कंठा। इंग्लिश में प्रभु जी हर्ष लिखा है कि ईर्ष्या? उत्कंठा तक इंग्लिश में ग्रेट ईगरनेस लिखा है, ईगरनेस नहीं उत्कंठा। नहीं नहीं नहीं, ईर्ष्या लिखा है कि हर्ष लिखा है? ईर्ष्या ही लिखा है, एनवी एनवी। ये बंगाली में मिसप्रिंट है। तो बंगाली में गलत है ना प्रभु, बंगाली में गलत है फिर। हाँ, लेकिन बंगाली में हमारा जो मोबाइल में जो फाइल है उसमें ईर्ष्या ही लिखा हुआ है। ये इसमें हर्षो लिखा है। हर्षो माने प्राइड ना रानी माता जी? आनंद बोलते हैं, मतलब हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस अच्छा, हैप्पीनेस। खुशी प्रभु खुशी। दिलीप साहब को आप रिपीट मत कीजिए, बार बार इको होगा। किनका? मेरा इको हो रहा है? ये दिलीप साहब प्रभु करते हैं ना, बार बार उनका इको होता है बीच बीच में। अच्छा प्रभु, यहाँ पे एक्सेप्ट का लिखा है क्या इंग्लिश में भी? क्योंकि श्लोक में तो लिखा है जो 5 के बाद में एतो भाव, एतो भाव में तो एक्सेप्ट का नहीं आ रहा है। ऐतो भाव माने ये सब, ऐतो भाव माने ये सब भाव का ऑल होता है। दिस फाइव। ऑल दिस फाइव, हाँ ठीक है। तो देन इसमें नहीं, श्लोकार्थ में लिखा है इत्यादि। श्लोका में इत्यादि लिखा हुआ है। यस। और कंठा इंग्लिश में zeal and supplication लिखा है। All became manifest. Zeal and supplication. हाँ, बट वेयर इज इत्यादि? फर्स्ट ऑफ ऑल इत्यादि श्लोक में कहाँ दिख रहा है? देखिए श्लोकार्थ में लिखा है, श्लोका विनय के बाद में। अर्थ में लिखा है या श्लोक में लिखा हुआ है? श्लोकार्थ में, अर्थ में, अर्थ में। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जील ये भाव है एक the symptoms of very great humility, zeal and supplication all became manifest at once. Proudy, कविता माता जी, proudy माने zeal and supplication. Proudy, zeal. Proudy का हिंदी क्या है? उत्साह। Okay. उत्तम भक्ति का श्लोक। And supplication माने विनय। विनय तो मालूम है, humility, विनीत भाव। अगला श्लोक 45 नंबर, ये तो हो गया। সেই ভাবের আবেশে শ্রীমতী রাধারানীর মন অস্থির হল এবং তিনি তখন সখীদের কাছে একটি প্রৌঢ়ী শ্লোক বলতে লাগলেন। Therefore she spoke a verse of advanced devotion. प्रौढ़ी बहुत ऊंचा स्तर का श्लोक बोलने लगा। क्या है? ও আর भी একটু সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং সেই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে তার শ্রীমতী রাধারানীর মতো অবস্থা হলো। अगला श्लोक। आशिश्लवापादरतं पिनष्टुमं आदर्शनं मर्माहतं करतु वा। आशील्यस्य वा पादतां पनिष्टुमां। आशील से क्या बोला? आश्लिष्य, आशीलस्य, ऐसा नहीं बोला। आश्लिष्य, आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमं। आश्लिष्य वा पादतां पनिष्टुमां अवसन्म। पिनष्टु माम, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। क्या? अदर्शनं नामर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनथस्तु स एव नापरः। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः।
এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্বক পেষণ করুক, অথবা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক। আলিঙ্গন করুক या छोड़ दे, মর্মাহত মার भी दे, সেই লম্পট পুরুষ, লম্পট আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়, আমারই প্রাণনাথ। यस, पंकज जी, वजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये श्लोक में यहाँ पे पीडीएफ में मदर स्नान मर्महताम लिखा हुआ है, अदर स्नान सेकंड लाइन। तथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राण, अच्छा, आश्लिष्लवा पाद रतं पिनष्टुमं मदर्शनं। 47 आदर्शनं ना, दर्शनम ही तो होगा प्रभु, बिना मतलब चाहे दर्शन दे या ना दे। यहाँ म लिखा हुआ है, म। नहीं, देखिए लिखा हुआ है हम लोग में आ है। हिंदी में है ना, मैं बंगाली का बता। एक्चुअली प्रभु माँ आदर्शनं, माँ वो सेकंड लाइन में आ गया ना, इसीलिए माँ देना जरूरी रहा। अच्छा, स्प्लिट हो गया इसलिए वो माँ म कर दी। ठीक, वो लाइन से दिया ना इसको। ओके, श्लोक का अर्थ सबको समझ में आया, आशा करता हूँ। अभी महाप्रभु इसका विश्लेषण करेगा। 48 नंबर श्लोक। यस, इंद्राणी माता जी। এটা অদর্শ নাম হবে, অদর্শ নাম তারপরে মর্মাহতম। यस, करेक्ट। আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, দেহ রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তেনো রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। জীবনাদায় দর্শন, যারে ন মরণ তনু মন, তবু দেহ মোর প্রাণনাথ, তবু দেহ মোর প্রাণনাথ। কি বানা দেখিয়া দর্শন जान। Yes. दिस इज हाई ट्यून, सेकंड टू लाइंस हाई ट्यून है। कितना हम लोग श्लोक ऐसा कर चुका है। ओके, अभी हाई ट्यून। ओके, की बाना देखिए दर्शना। हाई ट्यून है क्या? हाई ट्यून माने हाई ट्यून की बात, मैं भूल गया आपको, सुन अभी। अच्छा, आपको बोलिए, अभी मैं खुद भूल गया। प्रभु बोलिए, आप बोलिए। किया दर्शन जारे न मोरा तना माना, तबे देखो मोरा प्राणनाथ, तबे तेनु देखो प्राणनाथ। महाप्रभु विश्लेषण में बोल रहा है, আমি কৃষ্ণের পাদরতা দাসী, সে রস সুখের মূর্তি বিগ্রহ, সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করতে পারে, অথবা আমাকে দর্শন না দিয়ে আমাকে দেহ ও মন ব্যথিত করতে পারে, কিন্তু তাহলেও সে আমার প্রাণনাথ। সখী হে শুনো মোর মনের নিশ্চয়। नेक्स्ट प्लीज। बबीता माता जी को सेवा दिया, माता जी का साउंड ही नहीं आ रहा। ये सुमन শুনো মোর মনের নিশ্চয়, কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ
কৃষ্ণ অন্য নয়। মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়, মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়। such a beautiful শ্লোক। হে সখী, আমার মনের কথা শোনো। কৃষ্ণ আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুক অথবা দুঃখ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুক, সে আমার প্রাণেশ্বর, অন্য কেউ নয়। हरे कृष्णा प्रभु। হরে কৃষ্ণ। प्रभु जो 48 नंबर जो श्लोक है उसमें एक महाप्रभु एक बार तो बोल रहे हैं कि वे मेरा आलिंगन गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं, और फिर दूसरा लाइन लिखा है कि वे मुझे अपने साथ एक आत्मा का अनुभव करा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मैं आपका सुन नहीं पाया, आपका थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ। ये सेकंड लाइन जो इसमें लिखा है 48 नंबर श्लोक में, वे दिव्य सुख और रस के मूर्तिमान स्वरूप है, यदि वे चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एक आत्मा का अनुभव करा सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। प्रश्न एक क्या है? आत्मा का अनुभव करा सकते हैं मतलब আত্মসাৎ করতে করাতে পারে। ওকে, আমি समझ गया। সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করতে পারে, আত্মসাৎ করতে পারে, আত্মসাৎ, आत्मा का आनंद दे सकता है, आत्मा का तृप्ति कर सकता है, आत्मसात। मैं एक बार ये इंग्लिश तो में- हम लोग नहीं चाहते ना कि भगवान में विलीन होना। नहीं विलीन नहीं, ये विलीन की बात नहीं। आत्मसात मतलब मेरे अस्तित्व को समाप्त कर सकते हो। नहीं, आत्मसात माने समाप्त अस्तित्व का नहीं, आत्मसात माने क्या, मैं देखता हूँ एग्जैक्ट वर्ड। और दोनों वो इसमें मीनिंग में लिखा है कि विलीन होना। अच्छा, विलीन माने वो विलीन नहीं जो भगवान में विलीन हो जाएंगे। भगवान में मिल जाने, दोनों जब एक संग हो जाएंगे तो इनका अस्तित्व थोड़ी रहेगा, तब तो कृष्ण राधे कृष्ण हो जाएगा। ओके, 48 में लिखा है इंग्लिश में, he is the embodiment of transcendental. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him. हाँ, हरि बोल, make me feel, ये एक फीलिंग है आत्मसात। ऐसा नहीं कि भगवान में विलीन होकर भगवान बन जाना चाहती है, ठीक है। एक वो तो स्वयं भगवान ही, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ही ऑलरेडी। यहाँ राधा रानी बोल रही है, ये श्लोक राधा रानी बोल रहे हैं, सो यू नो he can give me a, तो राधा रानी भी तो भगवान की शक्ति है, उन्हीं की तो है। हाँ, वो तो यहाँ तो अलग अलग व्यक्ति है ना, यहाँ भगवान ने प्रेम की expand भाषा किया है राधा रानी रूप में आस्वादन करने के लिए, तो यहाँ तो अलग अलग व्यक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी बता रही है आत्मसात यानी मेक मी फील, एक जैसा, एक ही हमको एक कर लो, एक कर लो। या ओके। प्रभु जी आगे में लिखा है कि ही may corrode my mind and body, हाँ means take. व्यथित तो इंग्लिश बंगाली में लिखा व्यथित तो ही कैन गिव मी पेन, यू नो, मेरा मन और शरीर को पेन दे सकता है। हाउ? बाय दर्शन नहीं देकर, बाय नॉट गिविंग मी दर्शन। हाँ या यस, इंद्राणी माता जी পাদরত মানেটা একটু বলুন না। কোথায় মাতা जी, কোন শ্লোকে? এর আগের শ্লোকটাতেই ছিল পাদরত। আগে আগে বলবেন না, শ্লোক নাম্বারটা একটু বলুন প্লিজ। হাতির আচ্ছা এই অনেকগুলো শ্লোক করে জানা যাবে আগে। 48 আছে 47 ও আছে। 48 আছে, 47 আছে। আদিরত কি বললেন? পাদরত পাদরত। ও চরণ কমলোं में गिरा। ওকে, সন্ধি বিচ্ছেদ করে যদি বলতে হয় আপনাকে, পাদরতা দাসী, আমি কৃষ্ণের পাদরতা দাসী, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদদাসী, পাদরতা। 48 I am a maid servant at the lotus feet of Krishna. पादोरता, रता I don't know, सौंदर्य विश्लेषण के लिए क्या है? पाद प्लस रता, मैं चरणों की दासी, चरणों की दासी। वो तो मीनिंग समझ गया। मैं সন্ধি বিচ্ছেদ করে মিনিংটা বলতে বলছি। সন্ধি বিচ্ছেদ বুঝতে পারছেন? পাদরতা এর সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারবে কেউ? করে বোঝাতে পারবে কেউ? पादोरत प्रभु, पादोरत माने उसमें एंगेज्ड, पाद में चरणों में एंगेज्ड। ओके, यस राजीव प्रभु। तो ये जो 49 नंबर श्लोक आया, हाँ हाँ, ये जो है 42 में जो उनकी सखी लोग राधा रानी को बोल रही है ना कि अगर आपको कृष्ण नहीं जा रहे तो अच्छा है कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो।
इग्नोर, हाँ तो उसी का मतलब रिप्लाई में राधा रानी बोल रही है कि हाँ, very nice. कि मेरा Whether उनसे accept इतना or प्यार reject. है कि मैं उनको, वो मेरे को उपेक्षा करे चाहे ना करे, वो वही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। मतलब जैसे वो उनको सजेशन दे रहे थे, तो उसके बिहाफ में फिर राधा रानी बोल रही है। Okay, in that context, yes. ছাড়ি অন্য নারী গণ মোর বশ তনু মন। Chari गायत्री माता जी पढ़िए। छारियन नारी गण मोर बस तनु मन মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া मोर सौभाग्य प्रगट करिया পাশবারে দেয় পীরাম মনে কর ক্রীড়া। तसावर दे पिराम सने करे किरा এই নারী গণে দেখাইয়া সেই নারী গড়ে দেখাইয়া। কখনো কখনো কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীদের সঙ্গে সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বতভাবে আমার বশীভূত হয়। রাধারানী বললেন, হ্যাঁ, सबको त्याग करके हमारा বশীভূত, हमारा वश में आ जाता है भगवान। এইভাবে সে আমার সৌভাগ্য हरे প্রকট। कृष्ण माता जी। माता जी हम पढ़ नहीं पाएंगे माता जी। हाँ। ওকে, ঠিক। হ্যাঁ, এবং এইভাবে সে আমার সৌভাগ্য প্রকট করে, बिकॉज एक्सक्लूसिवली मेरे पास आ जाता है, मेरा मेरा वश में आ जाती है। এবং সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে আমার সঙ্গে লীলা খেলা করে তাদের ব্যথা দেয়। सबको समझ में आया ना? बाकी सखी लोग देखते रहते हैं और उन लोगों को दर्द होता है कि कृष्णा इज विद श्रीमती राधा रानी, ऐसे बोल रहे श्रीमती राधा रानी। हालांकि सब सखी लोग चाहते हैं कि एक्चुअली कृष्ण राधा रानी के साथ रहे। प्रभु ये सखियां बोल रही है। नहीं नहीं, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी बता रही। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो यहाँ पे वो राधा रानी को वो अभिमान वाला भाव आ गया क्या? अच्छा, कौन सा शब्द से आपको लग रहा है अभिमान? ये तो एक घटना का वर्णन कर रहे हैं राधा रानी। वो हमारा सौभाग्य को प्रकट कर रहा है वैसे। वो तो है, वो तो सत्य है, सौभाग्य ना। अगर भगवान श्रीमती राधा रानी के पास आएंगे तो वो तो सौभाग्य के प्रकट, ये तो कोई झूठ नहीं है। मैं भाग्यवान समझूंगी अपने आप को। ये तो सही है। इसमें इसमें भाग्यवान समझना ये तो कोई और फिर ये भी प्रभु तन और मन भगवान के द्वारा नियंत्रित है उनका। तो वसीभूत है ना, भगवान वसीभूत बोल रहे, हमारा वसीभूत है सर्वतो भाव। These all are feelings, nothing. ओके, लेट्स सी आगे कुछ तो उसमें आता है ना गोपी गीत में, फिर उनको अभिमान होते फिर कृष्ण चले जाते हैं। लेट्स सी हो सकता है आगे आए, देखते हैं 51 नंबर श्लोक। কিবা কেহ লম্পট শঠ দৃষ্ট সকপট। बोले पंकज मुन्ना प्रभु। प्रभु हाँ, मुन्ना प्रभु पढ़ ले। की बात होलाम पट शतधृष्ट सकपट। অন্য নারী গণ করি সাথ, অন্য নারী গণ করি সাথ। অন্য নারী গণ করি সাথ, অন্য নারী গণ করি সাথ। মোরে দিতে মন পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া। তবু দেহ মোর প্রাণনাথ, তবু দেহ মোর প্রাণনাথ। মোরে দিত মন পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া। তবু তেহ মোর প্রাণনাথ, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने वेरी नाइस। অথবা যেহেতু সে লম্পট শট দৃষ্ট এবং কপট,
তাই সে আমাকে মনোপীড়া দেওয়ার জন্য আমার সামনে অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, কিন্তু তা হলেও সে আমার প্রাণনাথ। कभी कभी मेरे पास आया तो कभी कभी उन लोग को अ, पीड़ा देता है, और कभी कभी उन लोग के पास चले जाते हैं और हमको पीड़ा देते हैं। जो भी हो, लेकिन मेरे ही प्राणनाथ है। पंकज बाबू, তো 60 মানেটা কি হলো? 60 ठगी। হবে। 52 নম্বর শ্লোক। নাগনি আপন দুঃখ পাবে বাঞ্ছি তারো সুখ। নাগনি নাগনি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ। তারো সুখ আমার তাৎপর্য, তারো সুখ আমার তাৎপর্য। তার সুখ আমার তাৎপর্য, তার সুখ আমার তাৎপর্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হইল মহা সুখ। সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ষ, সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ষ। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তার হইল মহা সুখ। সেই দুঃখ মোরে মোর সুখ বর্ষা, সেই দুঃখ মোর সুখ বর্ষা। আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না, আমি কেবল কৃষ্ণের সুখী কামনা করি, কেননা তার সুখী আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সে মহা সুখ পায়, তাহলে সেই দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ। पंकज बाबू, हरे कृष्णा बाबू जी, जो लास्ट लाइन में मोग सुखो वग्य, वग्स नहीं है शायद, सुखो वग्य। वर्य सुख वर्ष में इंग्लिश देख ले तो 52 वर्षन हो रहा है सबसे बड़ो सुख, बिकॉज इट इज लाइक सुख, माने सुख का वर्षन हो रहा है। वग्य मतलब भी बड़ा होता है ना, वग्य। लेट्स सी फिफ्थ श्लोक में क्या है 52। प्रभु अर्थ में तो लिखा है कि मेरा सबसे बड़ा सुख। हाँ, तो बड़ा का मतलब वगी हो गया ना, वरिष्ठ से। हिंदी में वर्य ही लिखा है प्रभु, आप वर्षों पढ़े इसलिए हम वर्षों पढ़े। ने भी वर्ष देखा इसलिए वर्ष पढ़ा। लिखा प्रभु वग्य है, वर्य है। हरिदास वग्य जैसे आता है वैसे ये सुख वग्य। No, I mean it makes sense. सुख वर्ष माने वर्षन होना, you know, makes sense. Maybe you know इंग्लिश में वैसे लिखते हैं जैसे क्षण को क्षण बोलते हैं आप लोग, हमारे बोले क्षण क्षण बोल देंगे, फिर मे भी उसीलिए इंग्लिश में वैसे लिखा है, बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। जैसे तात्पर्य में तात्पर्य का पूर्ण सुखवर्ज्य, तात्पर्य सुखवर्ज्य। हाँ प्रभु, क्या राजीव प्रभु, जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना तात्पर्य, सेकंड लाइन लास्ट वही सुखवर्ज्य, तात्पर्य सुखवर्ज्य। हाँ देखिए, तात्पर्य हिंदी में क्या लिखा है, तात्पर्य। इंग्लिश में क्या लिखा है, तात्पर्य। सुख बढ़िया, इसलिए बढ़िया बढ़िया। एकदम सही पकड़ा राजीव प्रभु ने। ओके, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, ভক্ত নিজেকে সুখ দুঃখ গণনা করেন না, ভক্ত নিজের সুখ দুঃখ গণনা করেন না, যাতে কৃষ্ণের সুখ উদয় হয় সেই জন্যই তিনি অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নেই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়ে মহাসুখী হলে ভক্ত সেই দুঃখকেই সর্বোত্তম নিজের সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ে কেউ কেউ নিজ সুखाभिलाषকেই काम्य फल मने करे। ये जो सहजिया लोग है, ये अपने आप को सुख देता है, ये सब अवैध संग करके,
और उनको लगता है कि कृष्ण को सुख मिल रहा है। मेरे सुख में कृष्ण का सुख है। কেউ বা প্রাকৃত সুখের থেকে কৃষ্ণ সেবার উপলক্ষণে স্বয়ংই অধিকতর সুখ ভোগ করব ইত্যাদি নানা প্রকার সসুখ ভোগ তাৎপর্যময় কর্মকাণ্ডকেই তাদের ভজন চেষ্টার ফল বলে মনে করেন। বস্তুত তাদের সেই প্রকার চেষ্টা ও কল্পনা ভজন শুদ্ধ ভজন বিষয়ে কাপট্যমূলক अनभिज्ञतार फल मात्र। माय गुडनेस, ये सब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का बंगाली है, बट समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो बोलिए, फिर डिस्कस करेंगे। सुनीति राधिका माता जी। हाँ प्रभु जी, है ना, नीचे से ऊपर जो थर्ड लाइन इसमें लिखा, उनमें से कुछ कृष्ण के सुख का हिस्सा बांट कर स्वयं भोग करने की मैथी की आकांक्षा रखते हैं। सो दे फील दैट हमको भी परक की रस भोग करना चाहिए। भगवान कर रहे हैं तो भगवान का भाव समझने के लिए आई आल्सो शुड इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके गुरु। ये तो हम लोग किस तरह से प्रभु भगवान के कृष्ण का हिस्सा कैसे बांट करके समझ में नहीं आया। क्या लिखा हिंदी में पढ़िए वो सेंटेंस। कृष्ण के सुख में हिस्सा बांट कर स्वयं भोग करने की महती आकांक्षा रखते, तो भगवान के सुख को बांट कर, सो कृष्ण आल्सो एंजॉयिंग, आई विल आल्सो एंजॉय पार्ट ऑफ इट। हम दोनों ही एंजॉय करेंगे ऐसा। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। मैं एक बार इंग्लिश पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। ये है 52 का। Those who are materialist, माने सहजिया, however who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge, like the Prakati Sahajiya, regard their own happiness as the aim of life. Some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. देखिए, by sharing the happiness of Krishna, उसका बात ठीक है। This is प्रभु लास्ट लाइन में भी ये है कि कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करके इंद्र तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं। हाँ। तो उस दिन भी प्रभु हम लोग माता जी से यही शेयर कर रहे थे, हम और निर्गुणा नीलांबरी माता जी भी वहाँ पे थी। तो हम लोग जो भी जैसे भगवान के लिए इतना भोग बनाते हैं, फिर अभी तो हम लोग का यही मेंटेलिटी, जो हम लोग को पसंद है वही भगवान के लिए बनाते हैं और फिर उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये एक तरह का ऐसा ही तो नहीं हो गया, हमको लग रहा है इंद्र तृप्ति तो नहीं हो गया। ये सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है। जैसे हम लोग भजन भी करते हैं तो सोचते हैं आनंद आया। आनंद आया नहीं, हम लोग को आनंद देना है भगवान को, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं आनंद आया। हम लोग फिर भी अपने आनंद के लिए तो करते हैं, तो उससे बहुत प्यूरिफिकेशन में टाइम लगेगा। भजन का आनंद आना ये स्वाभाविक है। हाँ प्रभु, ये तो अच्छा लक्षण है कि भगवान के भजन में आनंद आ रहा है। तो वो कई बार टेम्पल में देखते हैं कि आनंद देने का होना चाहिए ना, कि भगवान को आनंद देना है। हाँ, भक्त लोग भगवान को आनंद देता है और वापसी में आनंद मिलता भी है, तो नेचुरल है। हम लोग का फोकस तो अपना आनंद पे रहता है। मेरा तो प्रभु कई बार टेम्पल में भी इस तरह से देखते हैं कि कई जन बहुत जोर जोर से मतलब भजन करते हैं। अब इसमें ये नहीं समझ में आता। पहला वाला प्रश्न आपका लुप्त हो जाएगा। अब मैं जो प्रश्न किया उसका सोच रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, वो लुप्त हो जाएगा, ऐसा नीचे चले जाएगा मिट्टी का नीचे। हाँ, उसका कोई अगर उत्तर मालूम है या कोई कुछ बोलना चाहता है कमेंट तो करिए, अगर प्रश्न समझ आया तो। माता जी का प्रश्न क्या है कि हम लोग सोचे हमको पिज्जा खाना है, पिज्जा बनाया, भगवान को खिलाया, भोग लगाया, फिर हम लोग उसको चखा, तो देखा जाए तो इंद्र तृप्ति हुआ ना, क्योंकि हमको पिज्जा चाहिए था। माता जी जो बोल रही है सही बोल रही है, क्योंकि हम लोग अभी क्या है भगवान का मतलब ये भगवान का सहारा लेके अपना इंद्र तृप्ति करते। ओके, और दूसरा किसी का विचार है क्या हम लोग सचमुच एक्चुअली और क्या करें? अगर वो नहीं करे तो क्या करें? I mean, this is something is better than nothing. ये हमको लगता है। वो ठीक है। प्रभु ऐसे एक बार भक्ति शास्त्री में भी हमने प्रभु से प्रश्न किया था इसके बारे में, तो प्रभु ने कहा कि हाईएस्ट क्राइटेरिया तो यही है कि भगवान के लिए अच्छा भोग लगाओ, उसको बांट दो और अपने सादा भोजन करो। लेकिन वो तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग जीवन में देखें तो बहुत इम्पॉसिबल है। ओके, संगिनी शाह पे माता जी। हाँ प्रभु, जैसे माता जी बोली ना, जो हम लोग का इच्छा रहता है उसको बनाता है,
हाँ तो मेरे को ऐसा लगता है तो भगवान तो आगे बोलेंगे नहीं कि मेरे को ये चीज बना के दो, तो वही चीज हम लोग के मन में आता है कि नहीं। आज ये चीज बनाना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो अपने आप को समझाना। लेकिन लेकिन प्रभु ने जो उत्तर दिया था कि सादा अपने लिए सादा बनाओ, भगवान को भी सादा खिलाओ, ये तो करता था ना गोस्वामी लोग। उन लोग तो स्वामी लोग करता है, हम लोग गृहस्थ लोग। रोटी बनाता था और भगवान को रोटी और नमक खिलाते थे और खुद नहीं, पहला क्वेश्चन जो माता जी बोली उसका मैं आंसर दे रही हूँ। अरे तो हाई लेवल का हो गया, अपने लिए सादा बनाओ। और जो प्रभु ने उत्तर वो दिया भी नहीं था। देते थे प्रभु, नमक भी नहीं देते थे, खाली रोटी देते थे। भगवान ने नमक मांगा तो ना कर दिया, आज नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे, फिर गुड़ मांगोगे, फिर शहद मांगोगे। ये सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे अभी माता जी बोले ना कि है ना भगवान के लिए अच्छा बनाओ और अपने लिए सिंपल खाओ, तो माधव जो वृंदावन प्रभु ने वृंदावन में वो बोलते थे कि हम लोग अगर वो भगवान का जो भोग बनता है इतना घी में हम लोग खाएंगे तो हम लोग के हजम ही नहीं होगा, इतना ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो हम लोग भगवान के लिए ऑस्पेसियस खाना बनाते हैं और अपने लिए जो बड़ा किचन में बनता है, मतलब जो सिंपल वही प्रसाद पाते हैं। तो ये है, उन लोग ब्रह्मचारी लोग जो टेम्पल के, उन लोग ऐसे करते हैं। टेम्पल में माता जी, टेम्पल में हो सकता है ना, लेकिन घर में तो नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी आश्रम में है, उनका लिए सुविधा है। और सच बात बताओ तो मधुरा प्रभु तो खुद नहीं बनाते हैं, वो तो जो किचन डिपार्टमेंट बनाते हैं, और ब्रह्मचारी आश्रम में भी किचन डिपार्टमेंट है, वो बनाते हैं। लेकिन हम लोग अपने लिए सोचेंगे, हम लोग तो कोई ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या होना चाहिए। और हम लोग तो 2 बार नहीं बनाएंगे, एक ही बार बनाते हैं ना घर पे। आई डोंट नो, हम लोग तो एक ही बार बनाते हैं। आप लोग क्या सुनीति माता जी, राधिका माता जी 2 बार बनाते हैं क्या? नहीं बाबू जी, एक ही बार बनाते हैं ना, तो फिर एक ही बनता है, वही भगवान को पड़ता है, वही सब इसके लिए क्या आज टाइम है? तो आप लोग का भक्ति शास्त्री नहीं है ना, किसी का हड़बड़ी नहीं है ना, संडे है। नहीं प्रभु नहीं। हाँ, तो ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। बाकी ओपिनियन लेते हैं। इंद्राणी माता जी, अगर ये प्रसंग में तो पूछे, नहीं तो बाद में दूसरा कुछ है तो फिर এই প্রসঙ্গে এটা তো আমাদেরও হ্যাবিটে আনতে হবে আগে। আমরা তো এখন প্রসেসে আছি, আমরা যখন অভ্যস্ত হয়ে যাব তখন না হাই লেভেলের কথা ভাববো, আমাকে তো রাস্তায় আসতে হবে এইগুলো করে। गुड पॉइंट। पहले हम लोग का उस स्तर पे आए कि हम लोग सादा ले सकते, तो फिर भगवान को सादा देंगे और सादा लेंगे। या हिरणमय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कोई माता जी है, उनका लड़का के लिए कुछ बनाया, वो खाया तो सृष्टि में उनको आनंद लगता है। ऐसे भगवान के लिए हम जो बनाएंगे तो वही ऐसे ही आनंद तो मिल सकता है। और खुद खाने में आनंद दूसरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम देखा है कोई माता जी लोग उनका लड़का के लिए ऐसे सोचते हैं, ऐसा भगवान के लिए वेरी गुड। बना। ऐसा भी बोल सकता है कि आज हमको पिज्जा खाने का मन इसीलिए कर रहा है क्योंकि भगवान ने मेरे हृदय में, भगवान को पिज्जा खाने का इच्छा है, वो तो भगवान ने मेरे हृदय में प्रकाश किया। हो सकता है, भगवान तो परमात्मा है। ये स्मृति और ये इच्छा और अनिच्छा, ये तो सब भगवान से ही आता है ना। श्लोक भी है भगवत गीता में प्रसिद्ध। ये राजीव प्रभु, तो फिर तो आप बोले प्रभु की स्वेच्छा हो गया। इसका एकमात्र सॉल्यूशन मेरा मतलब ये मेरा थ्योरी है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितने आइटम है सबका चीट बना के बाउल में डालिए और डेली एक चीट खोलिए, आज क्या बनाना है। आपको भी नहीं पता कि क्या बनाना है। अभी वो चीट जो बनाएंगे वो भी तो आप अपने मन से ही बनाएंगे ना। तो इसमें आप ही कैसे है, हाँ, वो चीट में तो हमारे मन का ही रहेगा। हर टाइप का सब्जी रहेगा, चीट बना के सब भगवान के आइटम पास रहेगा चढ़ा ना, उसमें दीजिए। सब आइटम आप ही रहेगा, चिट में बोलिए। सब आइटम रहेगा। हर टाइप का सब्जी रहेगा। आज क्या सब्जी बन रहा है आपको नहीं पता है, आज क्या ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो या भोग तो वो सब्जी भी प्रभु फिर घर में होना चाहिए ना, तब वो चीट काम आएगा। नहीं, पहले चिट निकलेगी, फिर शॉपिंग होगी, फिर बाजार करा जाएगा, पहले चिट निकलेगी। आपका से आ जाएगा। अच्छा, वो चीट कहाँ से, वो चीट का जो आइडिया है सब भोग आरती से ले सकते हैं ना। भज भोग लुचि चीनी सरपुरी लाडू रसावली, इसमें बहुत आइटम है, 7-8 आइटम है और ज्यादा ही है। हरे कृष्णा प्रभु, अगर हायर टेस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग का मतलब खाने के प्रति तो कुछ पतन हो सकता है ना। बहुत इंद्र तृप्ति है प्रभु। कई बार हम बैठ के सोचते हैं ये चीज कि हम लोग की बहुत इंद्र तृप्ति है, भगवान को सेंटर में रख के हम लोग बहुत इंद्र तृप्ति करते हैं। नहीं, हमको ये कोई गर्व नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी में, हम लोग तो अलग अलग कुजिन्स खिलाते हैं भगवान को। कई बार सोचते हैं ये भी कि भगवान को हम लोग यंत्र बना दिए भोग लगाने का। We should not use the God as our food जो हम purifier. लोग को खाना है बस तुरंत बनाए, भगवान को भोग लगाए और खाए।
आप लोग अपना मतलब भोजन को खाली वो शुद्धता करने का ही भगवान को ये बना। ओके, मुकुंद प्राण प्रभु। हाँ प्रभु जी, भगवान के बारे में तो बहुत जगह लिखा हुआ है कि उनको ये पसंद है, ये पसंद है। तो वही चीज को मन में रखकर ये सब माता लोग भगवान बनाती ने है। ये भी नहीं बताया वो कि एकादशी के दूसरे दिन सब्जी कचौड़ी क्या क्या पसंद है वो तो बताया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान ने कहीं लिखा कि मुझे पिज्जा और लसाने ये सब पसंद नहीं है। नहीं, कहीं तो जैसे पसंद अपने नहीं। अपने बच्चे के शुरू में जैसे अपने बच्चे को रहता है कि ये मेरा बच्चा को बहुत पसंद है, और वो बड़ा हो गया, कहीं बाहर चला गया, फिर आ रहा है, तो उसको लगता है नहीं मेरे बच्चा को तो यही चीज बहुत पसंद था, आज क्यों नहीं हम यही चीज आज बच्चे को खिलाएं। ओके,